Hey guys, welcome to Bit by Bit Crypto, and today we're gonna discuss about what is cryptocurrency, the future currency of our Earth. Let's get started. So basically, Krish, my first question is, what is cryptocurrency? So, cryptocurrency is a digital currency. Let's not get too complex about it. It is a digital currency. We hold those currency in our wallets, in our mobile wallets, in our different kind of wallets. So the whole motive of cryptocurrency is to go decentralized. So what basically decentralization means? So as you all know that our money is controlled and regulated by our governments, RBI, central bank and all. So there are a lot of demerits about because there is a thing that it is our money, we should control it, we should regulate it. But the thing is, when there is any error or where there is any problem regarding the banks or the government, so we are the only people, the citizens of the country, they go through a lot. Because if, let's say for Vijay Mallya, he did a scam, वो स्कैम करके तो चला गया, पैसा लेके वो चला गया, बैंक बैंक का नाम खराब हुआ कि बैंक का लाइक इस बैंक में इतने करोड़ हजारों करोड़ का स्कैम हुआ है, बट उसने तो स्कैम कर दिया, बैंक को फूल कर दिया, बट यहाँ पे जितना पैसा था वो सब तो सिटीजन्स का था, हम जैसे लोग का था, Basically the taxpayers' money. या सो यहाँ पे क्या हुआ कि लॉस जो भी हुआ है ना सब हमारा हुआ है. मतलब जो भी उस बैंक में जो भी लोगों ने अपने लाइक लाइफ अर्निंग्स, हार्ड अर्न अर्निंग्स जो भी रखे थे, सब सब एक बार में गायब. बिकॉज उसने स्कैम किया तो हम क्यों भुगते हैं? लाइक इफ वी आर कीपिंग आवर मनी, we want to keep our money safe, like somewhere very safe. We don't want our money to be like get stolen or anything like that. So वहाँ पे स्कैम होता है तो बैंक्स का क्या होता है कि बैंक्स बोलते हैं कि हाँ ये स्कैम हो गया एंड ऑल, पर हम उनको पकड़ेंगे, ये वो, पर पैसे तो चले गए ना. तो पब्लिक का पैसा गया, बैंक का पैसा इतना नहीं गया जितना पब्लिक का पैसा गया. सो बिकॉज ये सेंट्रलाइज्ड है, हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है हमारे पैसे का. हम बैंक में जमा कर देते हैं, हम दूसरे जगहों पे जमा कर देते हैं. तो द होल मोटिव इज टू गेट गो डिसेंट्रलाइज. लाइक सेंट्रलाइज्ड है अभी हमारा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है, सो कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, आवर मनी. सो गवर्नमेंट, आरबीआई को कितना पैसा छापना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, सब उनके हाथ में. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सब डिसेंट्रलाइज हो जा रहा है. डिसेंट्रलाइज में मतलब हमारा पैसा हम कंट्रोल करेंगे. बिकॉज यहाँ पे क्या होता है व्हेन वी गो डिसेंट्रलाइज ना, सो वन टू वन लाइक पीयर टू पीयर हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट एनी थर्ड पार्टी. सो यहाँ बैंक का कोई काम ही नहीं आ रहा है. Like basically a barter system. या सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ आई वांट टू सेंड यू अ कॉइन, अ क्रिप्टो कॉइन, then I will just like send you the coin, send on a address, on a wallet address and like that. So यहाँ पे and the main part is we can track the coin. Like हम यहाँ पे पैसा चला गया तो चला गया भाई, कहाँ गया we don't know, क्योंकि इसमें चिपसेट या कुछ है नहीं. बट यहाँ पे क्या है, the whole thing is controlled by a blockchain. Like the every transaction, like every transaction we make, they go and it is fed in the blockchain. Like उसमें feed हो जाता है blockchain में. एक block ऐसे जैसे if I'm like transferring some coins to you, so जो भी transaction हुआ है वो एक block बन के blockchain में attach हो जाएगा. And blockchain का ये है कि like we can see whole transaction, like world में जितने भी transactions हो रहे हैं क्रिप्टो के, we can see that, like हम देख सकते हैं. Obviously for like privacy issues, name and country, IP address, IP address, name ये सब नहीं रहता है. But we can see कि भाई इतने अमाउंट में ये एड्रेस से ये एड्रेस पे गए, so we can track that money. तो यहाँ स्कैम होने की बहुत मिनिमल चांसेस है. So what is the main motive behind cryptocurrency?
In 2009, a man or a group of people named Satoshi Nakamoto, uh, he he released a report on Google that the report's title was Bitcoin, a decentralized currency. So at that time, people were very suspicious about the whole concept of cryptocurrency at that time. But उसके बाद धीरे धीरे जब ग्रोथ हुआ, when people saw कि it's going like काफी steady growth हो रहा है Bitcoin का, the the report was just talking about decentralized. What is decentralized and what are the benefits of? Because यहाँ demerits कम है और merits ज़्यादा है. जैसे हमारे सेंट्रलाइज सिस्टम में डीमेरिट्स ज़्यादा है, मेरिट्स कम है, बट यहाँ पे मेरिट्स ज़्यादा है और डीमेरिट्स काफ़ी कम है. सो द होल पॉइंट एक्सप्लेन इन दैट रिपोर्ट वाज कि क्रिप्टो करेंसी लाया क्यों गया है. सो क्रिप्टो करेंसी को बस इसलिए लाया गया है बिकॉज वी डोंट वांट आवर मनी टू बी मिसहैंडल्ड बाय सम अदर पर्सन, बिकॉज we can bear the cost of like losing our money, our money getting stolen वगैरह. like ठीक है, हमारा पैसा हमसे कुछ हो रहा है तो हम समझ सकते हैं भाई, हम अपने ऊपर ले सकते हो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट बैंक के या किसी स्कैमर के वजह से हमारे पैसे जा रहे हैं, द होल कंसेप्ट इज मतलब खराब ही है. मतलब हमारा पैसे किसी और के वजह से क्यों जाए? हम उसको कंट्रोल करते हैं ना. हमारी गलती से जाएगा तो वी कैन हाँ हमारी गलती थी, बट दूसरों की गलती से हमारा पैसा जो जा रहा है वो प्रॉब्लम है. तो पूरा डिसेंट्रलाइज्ड जो पूरा सिस्टम है उसको पूरा डिसेंट्रलाइज करना है. तो इसमें क्या होता है, पहले तो फी चार्जेस बहुत मिनिमल हो जाते हैं. तो इफ आई हैव टू सेंड सम मनी लाइक लेट्स से अभी से 10 साल या 11 साल 10 साल 15 साल बाद क्रिप्टो करेंसी सब एडॉप्ट करना चालू कर दिया. सो अभी फिलहाल तो लीगल टेंडर इंडिया में नहीं हुआ है, बट लेट्स से फॉर टेस्ला. तो what is basically legal tender? Can you explain more about it? So legal tender means if we are holding some coins, some crypto coins, we can send those coins, we can trade those coins, but we can't go and buy goods and services. So if I have some bitcoins, Ethereum or any other altcoins, so I can't just go to a इलेक्ट्रॉनिक शॉप, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में वो घुस गया एंड आई एम सेइंग कि भैया ये फ्रिज या ये जो भी है टीवी एंड ऑल मोबाइल मेरे को दे दो एंड मैं आपको बिटकॉइन देता हूँ उतने वर्थ का. तो वैसा नहीं होता. उसको बोलते हैं लीगल टेंडर नहीं हुआ है अभी. लीगल है होल्ड करना, लीगल है ट्रेड करना, लीगल है बाय सेल जो भी करना, बट वी कांट जस्ट. अभी यूएस में लीगल टेंडर है because the companies who are accepting the cryptos and bitcoins and all. So let's say for Tesla, so Elon Musk said ki now you can buy Tesla cars using your bitcoin. So people just have, if people are holding bitcoins from 2009 or 2010 let's say, so the value at that time was just $1 and now its value is like $57,000-58,000 today. So कितना बड़ा डिफरेंस है. लाइक वो टाइम पे $1 वाज क्या यार, $1 का कॉइन है. सो पीपल माइट हैव बॉट अ लॉट ऑफ कॉइन्स वो टाइम पे, लाइक 50 और 100. दे वर लाइक कि हाँ $50 $100 का लाइक इट मतलब मैं उतना कॉस्ट अगर मेरा जाएगा लाइक बेयर कर सकता हूँ. तो उनका तो उन्होंने $50 $100 के कॉइन से लिए 50-100 बिटकॉइंस हो गए उनके पास. बट लेट्स से उनको सेल करना ही नहीं था. दे वर लाइक लेट्स सी क्या होता है इस मार्केट का, क्योंकि बहुत ज्यादा आई कैचिंग है. लाइक क्या है क्रिप्टो करेंसी, एवरीवन इज गेटिंग इंटरेस्टेड. लाइक लेट्स से फॉर इंडिया, अभी तो इंडिया में 2021 से अलग ही ट्रेंड चल रहा है क्रिप्टो का. कहाँ शेयर मार्केट के लोग, कहाँ मार्केटिंग के लोग, सब क्रिप्टो क्रिप्टो क्रिप्टो. तो पीपल वर होल्डिंग दोस कॉइन्स वो टाइम पे. तो अभी यहाँ पे आ गया है लाइक ये प्राइस पॉइंट पे, एंड मेरे हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस बहुत ऊपर जाने वाला है बिकॉज 21 मिलियन ही सप्लाई है उसका. सो जितना कम सप्लाई
और डिमांड जितना ज़्यादा, प्राइस तो भाई स्काई Boost करेगा। बूस्ट, बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। एंड द थिंग इज कि लीगल टेंडर इंडिया में नहीं है, आ जाएगा आई होप, बट यूएस में जैसे अभी वी वांट टू बाय सम, लाइक फिलहाल तो टेस्ला और 2-3 कंपनी ने ऐसा बोला है कि आप डोजकॉइन ने भी अप्रूवल दिया स्पेसएक्स को। डोजकॉइन स्पेसएक्स को दिया, तो पूरा फंडिंग जो पूरा सैटेलाइट का हो रहा है, डोजकॉइन मिशन का, वो पूरा डोजकॉइन के थ्रू हो रहा है। देयर इज नो यूएसडी, सो फिएट करेंसीज यूज नहीं होने वाले हैं पूरे प्रोजेक्ट में। सो वही है, लीगल टेंडर यहाँ पे नहीं हो पाया है, बट लीगल है। लीगल है मतलब आप होल्ड कर रहे हो बिटकॉइंस, ऑल्ट कॉइन्स, पूरा क्रिप्टो करेंसी जो भी है आप होल्ड कर रहे हो, तो इट इज कम्प्लीटली लीगल, मतलब उसमें कुछ गलत नहीं है। आप ट्रेड भी कर सकते हो, ट्रेडिंग भी अलाउ कर दिया है। लेट्स टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग एंड ऑल, लाइक लीगल वगैरह क्या, तो 2018 में आरबीआई ने बैन कर दिया क्रिप्टो करेंसी को। अब बैन कर दिया, पीपल वर इन इंडिया वर स्टिल interested in crypto in 2018 also. There were some people who were like investing in crypto from 2014-15 in India. So if they are holding, they are super rich right now. So वो टाइम पे 2018 में आरबीआई ने डायरेक्टली बैन ही कर दिया व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी का, लाइक पूरा जो है ना वो सब बैन कर दिया। नो ट्रेडिंग, नो नथिंग, लीगल टेंडर तो दूर की बात है। बट 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बोल दिया कि आप क्रिप्टो करेंसी रख सकते हो, लीगल है, बस लीगल टेंडर नहीं है। सो गुड्स एंड सर्विसेज आप नहीं खरीद सकते, बट आप ट्रेड कर सकते हो। आप जैसे कोई क्रिप्टो कॉइन को आप अपने फिएट करेंसी में बदल सकते हो। लाइक आप कोई भी कॉइन को इंडियन रुपीज में, मान लो आपने कोई कॉइन होल्ड किया है, आपने अभी सेल कर दिया उसको, सेल किया तो आपको जो पैसे आए हैं इंडियन रुपीज में वो आप अपने अकाउंट में ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे ऐप्स है, जो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, एक्सचेंजेस है जो हमको ये देते हैं फैसिलिटी। तो ये पूरा बैंक के पीछे मोटिव क्या था बेसिकली? बैंक्स को इससे नुकसान क्या होगा अगर क्रिप्टो करेंसी बूस्ट करता है आने वाले सालों में? बैंक्स का क्या है कि बैंक्स मेक अ लॉट ऑफ मनी थ्रू अस, बिकॉज अगर पूरी जनता का माइंड डाइवर्ट हो रहा है क्रिप्टो के पास, लाइक जैसे थोड़े टाइम पहले 1992 में पूरा इंडिया डाइवर्ट हो गया था स्टॉक मार्केट में, बिकॉज हर्षद मेहता डेफिनेटली प्राइसेस काफी लोग ने बहुत पैसे बनाए और काफी लोग का सुसाइड भी किए। तो मतलब मेरिट्स और डिमेरिट्स उनमें होते ही हैं। बट जब बैंक्स का क्या है, बैंक्स हमको लोन देती है, हमको हमारे से भी इंटरेस्ट कमाती है, अच्छा खासा इंटरेस्ट कमाती है, पैसा वो इन्वेस्ट भी करती है। बैंक्स बहुत काफी अच्छा कमाते हैं, बिकॉज वी आर कीपिंग आवर मनी देयर एंड वी थिंक दोज मनी आर सेफ। सेफ क्या होता है भाई? सेफ नहीं है वो मनी। मैं तो बोल रहा हूँ कि इंडियंस को अभी तक एक चीज पता नहीं चला है, लाइक बहुत ही कम इन्फ्लेशन 5 से 6% होता है पर ईयर। एवरी ईयर इन्फ्लेशन 5 से 6% होता है, मतलब प्राइसेस बढ़ रही है। आज जो 1 रुपए का है वो कल 2 रुपए का हो रहा है, तो इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन 5-6% का हो रहा है। पीपल आर थिंकिंग अरे यार हमारे पास इतना पैसा है, हम अपने ये बैंक अकाउंट में रख देते हैं और इंटरेस्ट आएगा 2-3% का, एंड दे आर गेटिंग हैप्पी। अरे भाई अब मेरे को 2-3% का इंटरेस्ट आ रहा है इतने पैसे। दे डोंट नो कि वो 2-3% का इंटरेस्ट आपको क्या कर रहा है कि बेसिकली फ्यूचर में उनके लिए एक तरीके का लॉस है। बिकॉज अब देखा जाए तो इन्फ्लेशन मान लो आप 6% पकड़ते हैं, आपको कोई बैंक 3% का इंटरेस्ट दे रहा है, तो आप -3% में चल रहे हो। आपका पैसा -3% से वैल्यू उसका गिरते जा रहा है। अगर आपको बैंक 6% का दे रहा होता है तो आपके पैसे का कीमत न्यूट्रल रहता। आपको 3% से दे रहा है तो -3% से आपका पैसा उसका वैल्यू गिर रहा है। अगर वो 7% का देता 1% से तो 1% से बढ़ रहा वो करेंगे नहीं। हाँ, तो ये बैंक्स का ऐसा है कि अगर क्रिप्टो करेंसी आ गया तो पीपल विल स्टार्ट यूजिंग इट, एंड जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा तो लीगल टेंडर होने के काफी चांसेस है, बिकॉज इंडस्ट्रीज आर राइट नाउ एडॉप्टिंग। लाइक अभी सीआईटीआई बैंक ने रिसेंटली बोला दैट वी आर सपोर्टिंग क्रिप्टो करेंसी एंड वी गोना डू समथिंग अबाउट इट। सो अभी इतना बड़ा सपोर्ट आ चुका है, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट्स कि ये लीगल टेंडर हो जाए।
सो बैंक्स का ऐसा है कि बैंक्स को बेनिफिट ज़रा भी नहीं है क्रिप्टो से, बिकॉज पूरा डिसेंट्रलाइज हो जा रहा है। बिकॉज सेंट्रलाइज रहता है तो बैंक को काफ़ी बेनिफिट होता है, बट जब डिसेंट्रलाइज हो जा रहा है, बिकॉज क्रिप्टो का पूरा मतलब ही है डिसेंट्रलाइजेशन। सो जब पूरा डिसेंट्रलाइज हो जा रहा है तो बैंक का उधर प्रॉफिट नहीं है, बैंक का उधर जो भी यूजर्स है, बैंक के जो भी कस्टमर्स हैं, काफ़ी बहुत कम हो जाएंगे। सो राइट नाउ सबसे हॉट टॉपिक ये है इंडिया में कि बैंक अलाउंस ही नहीं दे रही ट्रांजेक्शन का एक्सचेंजेस को। तो मान लो वजीर एक्स हो गया, कॉइन डीसी एक्स हो गया, तो ये सारे जो एक्सचेंजेस है, जो हमको, हमारे इंडियन की जनता को जो दे रही है, एक फैसिलिटी दे रही है कि आप क्रिप्टो यहाँ पे खरीदो, सेल करो, हम आपको सारे फैसिलिटी दे, तो इन ये काफी मतलब खराब चीज है कि बैंक अलाउंस नहीं दे रही है कुछ कुछ, एंड कुछ कुछ बैंक का ये कहना है कि ट्रांजैक्शंस इतने ज्यादा वो हो रहे हैं कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, उनको और मैन फोर्स चाहिए उनको। सो उनका ये भी कहना है। अब हमको नहीं पता, लाइक ये भी रीजन हो सकता है ऑब्वियसली, बिकॉज बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है जो ट्रेडिंग होती है, तो ऑब्वियसली उनको मैन फोर्स चाहिए, मतलब दैट कुड बी अ रीजन। बट देयर इज ऑल्सो वन फैक्टर कि उनको क्रिप्टो करेंसी अभी फिलहाल तो नहीं चाहिए इंडिया में, बिकॉज दे आर नॉट सपोर्टिंग इट, दे डोंट वांट इट राइट नाउ। बट अगर क्रिप्टो नहीं रहा इंडिया में तो सारे कंट्रीज के मुकाबले इंडिया की इकोनॉमी इतनी गिर जाएगी, बिकॉज एवरी कंट्री विल अडॉप्ट क्रिप्टो करेंसी, दे विल स्टार्ट ट्रेडिंग विद इट, बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। और अगर वो इंडिया में नहीं हुआ तो काफी ज्यादा इकोनॉमी हर्ट होगा। तो ये चीज है, तो यही है बैंक्स का। बट देयर आर रूमर्स कि बैंक आर कमिंग फॉरवर्ड फॉर क्रिप्टो करेंसी राइट नाउ, लाइक पर बीच में न्यूज़ था शायद आईसीआईसीआई बैंक ने बैन कर दिया क्रिप्टो को। आईसीआईसीआई ने अभी भी उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि वो लोग ट्रांजैक्शन बराबर करेंगे या नहीं। सो यही है बैंक का। तो here we conclude. So I hope आप सबको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी एंड क्या पोटेंशियल है इसका, कैसा ग्रोथ रहेगा, एंड आगे के वीडियोस में we will discuss a lot about cryptocurrency, and there is not just cryptocurrency. There are a lot of projects that I know that you also told me about a project that we are going to discuss in our upcoming videos. So stay tuned.